गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आइए हम लोग टुडे वी विल स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। We have already discussed all these chapters all these topics in detail, and we are slowly and steadily at the end of this chapter. Means we are going to study last topic. What is students last topic? Our last topic is to find the zeros of any polynomial. To find the zeros of any polynomial px when some of its zero are given. Some of its zero are given. Students, what it mean? It mean that if we have a polynomial of degree 3, तो it means it has 3 zeros. तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे। तो मैं ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इफ वी हैव 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स इट हैज 3 जीरोस। इफ वी हैव 4 डिग्री पॉलिनोमियल इट हैज 4 जीरोस। जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरोस जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? मैंने पहले भी बताया हुआ है, once again I am repeating, if the value of polynomial at any point is 0, the value of any polynomial at 0, then it is called zero of a polynomial. Students, two things before starting to this question, this type of question, you should recall two important facts. First, what are zeros of polynomial? X equals to a is called zero of a polynomial if p at a equals to 0. Students, this is very important thing. And another important thing is कि third degree polynomial has 3 zeros, fourth degree polynomial has 4 zeros. Third degree polynomial has 3 zeros, and fourth degree polynomial has 4 zeros. So, but it is quite a best students. Second degree polynomial means quadratic polynomial has 2 zeros, and so students, in this type of question sum of zeros are given. Suppose we have 3 degree polynomial, third degree polynomial, and in third degree polynomial it's 1 zero is given or 2 zero is given. Then we are to find the remaining zeros. कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। मैंने एटलीस्ट वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी टू यू। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज find all zeros of polynomial 2x cube minus 4x minus x square plus 2 if two of its zeros are square root of 2 and minus root 2. Students, you can see this is a third degree polynomial and it has 3 zeros. And out of 3 zeros 2 are given. 2 are already given and you are to just find the third zero. So students, we have two methods. Two methods to solve this type of polynomials, or there are obviously 3 methods. We can call 3 methods. ठीक है? One latest method came to in my mind, so I am discussing all these 3 methods to solve this type of question. So first method is students factorization. If you are able to factorize this polynomial easily, you can find the zeros, which is discussed by me in very starting classes. So first method is factorization, second method is division of polynomials, and third method is relation between zeros and coefficients. Relation between zeros and coefficients. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 मेथड होंगे
जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं पर कोई मेथड इजी पड़ता है, कहीं पर कोई मेथड इजी पड़ता है, तो हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। तो फॉर दिस वी हैव थ्री मेथड्स, फैक्टराइजेशन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग स्टूडेंट्स आइए पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का यूज करके देखते हैं। लेट px equals to 2x cube minus 4x minus x square plus 2 has three zeros अल्फा बीटा एंड गामा। स्टूडेंट्स आपको याद है ना, अल्फा बीटा गामा तीन जीरो जब भी हमें सपोज करना हो तो हम इस तरह से ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमको दो जीरोज ऑलरेडी गिवन है, दो जीरोज ऑलरेडी क्या है गिवन है, अल्फा गिवन है, सपोज करो अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखना है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, अगर अल्फा जीरो है मींस x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा जीरो है तो x माइनस बीटा विल बी ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और तीसरा जीरो गामा है तो x माइनस गामा इज ए पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, देन px can be written as px equals to x minus alpha, x minus beta and x minus gamma। ये होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से पॉलिनोमियल होगा। आप स्टूडेंट इस बात को बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अगर कोई थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है उसके तीन जीरोज हैं, तीन जीरोज है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तो पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल, यू शुड कीप इन माइंड। सो इफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब स्टूडेंट्स टू जीरोज आर ऑलरेडी नोन टू अस, दो जीरोज हमको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक जीरो का वैल्यू ये है और एक जीरो का वैल्यू ये है। सपोज अल्फा की वैल्यू √2 है और गामा बीटा की वैल्यू -√2 है, तो हमें सिर्फ गामा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, उसी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आज अच्छे से आप समझ लेंगे उस चीज को। फिर मैं भी आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत आसान होता है, उससे आप तुरंत निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इफ टू जीरोज आर गिवन यू मल्टीप्लाई टू फैक्टर्स, आप दोनों फैक्टर्स को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। तो इजीली स्टूडेंट्स मैंने आपको बता के रखा है, already I have told you this will be x square minus alpha plus beta x and plus alpha into beta। इन दोनों का मल्टीप्लाई स्टूडेंट से होता है, आपको याद भी होगा, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पोर्शन में बताया भी है। एंड इनटू स्टूडेंट्स x माइनस गामा। स्टूडेंट्स ये क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज हमको पता है, जिसकी वैल्यूज पता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, आराम से देखिएगा बिल्कुल आसानी से, देन px कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, यहां देख लीजिए आप, √2 एंड माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इंटू माइनस √2, ये होगा स्टूडेंट्स, एंड x माइनस गामा। सो वी कैन इजीली सिंप्लीफाई इट, we can easily simplify it। What is the value of this polynomial? So students this polynomial is what, x square, ये student 0 हो गया, this portion is 0 and this portion is 2, x square minus 2 and x minus gamma। So px equals to students इतना आ गया। Our polynomial can be written, px की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसका यूज करेंगे हम बाद में। So स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों का आपको समझ पा रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब 0 हो गया, और √2 मिला के 2 हो गया, इसकी वजह से -2 आ गया। तो अब थर्ड जीरो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, सारे फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, थर्ड जीरो निकालना मतलब इसको निकालना। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरे डिटेल से कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको x माइनस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी तीसरा जीरो फाइंड करना है, ठीक है, थर्ड जीरो निकालना है, थर्ड जीरो निकालना है, या अब तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, px डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2।
यानी px को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको तीसरा फैक्टर मिल जाएगा, आसानी से आपको तीसरा फैक्टर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इतना नोट कर लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन 2 और इसको 3 ले लेते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि तीसरा जीरो निकालने के लिए हमें इससे क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना होगा। थर्ड जीरो विल बी गिवन बाय दिस फैक्टर, ठीक है, नोट कीजिए। ये हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो px को हम लोग इससे डिवाइड करके देखते हैं लॉग डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट्स हमारा आपको याद है क्या मिला था, आपको x माइनस गामा इक्वल्स टू क्या था, px डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। तो आइए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। x स्क्वायर इन स्टैंडर्ड फॉर्म दिस विल बी माइनस x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2। नाउ मल्टीप्लाई, स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर से आप डिवाइड करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो माइनस 1 टाइम जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2, इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे या फैक्टर थे। फैक्टर थे मींस ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, रिमाइंडर मस्ट बी 0। रिमाइंडर 0 ही आएगा, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं डिवीजन प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 1, यानी हमारा तीसरा फैक्टर क्या आ गया, आवर थर्ड फैक्टर इज मतलब px इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, ये इंटू ये लिख सकते हैं। तो थर्ड फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे तो थर्ड 0 मिल जाएगा। थर्ड 0 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1/2। तो ये है स्टूडेंट्स आपका थर्ड 0, यानी तीसरा 0 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर माइनस √3 एंड प्लस √3। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको तुरंत हल हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इजीली, यू कैन सॉल्व विद इन 2 or 3 मिनट्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो let us see what is our polynomial. Our polynomial is this given polynomial. So let zeros of given polynomial are, so this is a third degree polynomial, so it has 3 zeros, so take 3 zeros are alpha, beta and gamma. If the zeros of polynomial are alpha, beta and gamma, स्टूडेंट्स अगर फोर्थ डिग्री होगा तो एक नया वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, इसका यूज करेंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं अगर 4 डिग्री का है। तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा, बीटा एंड गामा, देन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज px इक्वल्स टू रिटन एज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, बिकॉज दे आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इफ स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन the polynomial will be px, means product of these 3 factors। अल्फा 0 है मतलब x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा 0 है x माइनस बीटा फैक्टर होगा, गामा 0 है x माइनस गामा फैक्टर होगा। यानी इस पॉलिनोमियल के स्टूडेंट 3 फैक्टर होंगे।
अब हमको दो जीरोस पता है, दो जीरोस की वैल्यू क्या है, नोन है। जो अगर दो जीरोस की वैल्यूज नोन है तो स्टूडेंट्स आपको दो फैक्टर को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। एंड स्टूडेंट्स तीसरे वाले फैक्टर को कोई दूसरा कोई पॉलिनोमियल सपोज कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए तीसरा वाला पॉलिनोमियल क्या है, fx है, क्या है, fx है। तो स्टूडेंट्स fx का जो जीरो होगा वही अपना तीसरा जीरो होगा, fx की जो fx से जो भी जीरो निकलेगा वही थर्ड जीरो होगा, यानी fx का जीरो यानी गामा, ठीक है। यानी fx का जो भी जीरो निकलेगा वही अपना गामा होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा प्रोसीजर है। तो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गिवन है, दो जीरोस गिवन है, तो क्या कर देते हैं, रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 इंटू एफ एक्स। स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, पी एक्स तो गिवन ही है, पी एक्स पता है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए जल्दी से बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी जीरो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स। और आपको स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी तीसरा वाला फैक्टर निकालना है, तीसरा वाला फैक्टर आ जाएगा तो तीसरा जीरो तुरंत आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप प्रोसीजर समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो हाउ वी विल गेट एफ एक्स, वी विल गेट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय px एंड x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। fx कैसे निकलेगा, यानी थर्ड फैक्टर कैसे निकलेगा, fx मींस थर्ड फैक्टर। fx का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस गामा। लेट अस टेक x माइनस गामा इक्वल्स टू fx। टेक x माइनस गामा इक्वल्स टू fx, यानी स्टूडेंट तीसरा जीरो देगा fx। इसे उसी मोड पर पहुंचा दिया है स्टूडेंट, किस मोड पर, डिवीजन वाले मोड पर लाके छोड़ दिया है। तो आइए डिवीजन पर फॉर्म करते हैं। डिवीजन क्या है, px मतलब ये वाला पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ऐसे नॉर्मली यहाँ पर लिखते हैं, आसान रहता है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, दो तीन पावर में से दो पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बची और 2 बचा। यानी स्टूडेंट्स क्या मतलब है, यहाँ पर आपका 2 और x का मल्टीप्लाई कीजिए, 2x क्यूब 2x का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 6x, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचा स्टूडेंट्स। फिर से देखिए क्या आएगा, क्या आपका अगला फैक्टर क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म में डिवाइड कीजिए, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3, रिमाइंडर क्या आ गया 0। स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर 0 नहीं आता इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब सीधा मतलब है कि आपका डिवीजन गलत है या तो पहले कहीं पर क्वेश्चन गलत है। तो स्टूडेंट्स px इसको आपने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल गया, fx की वैल्यू आ गई, यानी px को इससे डिवाइड करने पर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गया 2x प्लस 1। तो थर्ड जीरो तो यहीं से निकलता है ना, तीसरा जीरो के लिए ही था, तो थर्ड विल बी गिवन बाय fx इक्वल्स टू 0, यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -1/2। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड ऑल द जीरोस। तो आपको दो तो पता थे, तो आप लास्ट में आंसर लिखते समय क्या करेंगे,
आप लास्ट में आंसर लिख देंगे ऑल जीरोज। स्टूडेंट्स इस छोटी सी मिस्टेक से कभी कभी हाफ मार्क्स कट जाता है। ऑल जीरोज, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ इट्स टू ऑफ इट्स जीरोज आर -√2 एंड √2। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल चेंज है, देखते हैं क्या है। तो लेट गिवन पॉलिनोमियल, आप गिवन पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल px has 3 zeros अल्फा, बीटा एंड गामा। इसके 3 जीरो है स्टूडेंट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर इसके 3 जीरो है तो इसके 3 फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स। अगर 3 जीरो है तो कितने फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स? 3 फैक्टर होंगे। अब जैसे 3 फैक्टर होंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? px इक्वल्स टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको 2 जीरोस पता है तो आपके लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं आपको इसका मल्टीप्लाई करके बता चुका हूं, आप खुद भी कर सकते हैं। और इस तीसरे जीरो को मान लेते हैं स्टूडेंट्स fx। अब स्टूडेंट्स वैल्यू लिख दीजिए, अल्फा और बीटा गिवन है आपको। अल्फा की वैल्यू -√2 है, बीटा की वैल्यू √2 है। तो x² -√2 प्लस √2 x प्लस √2 एंड -√2 इंटू fx एंड अपॉन px, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको px पता है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज px एंड fx क्या है स्टूडेंट्स? fx इज नथिंग बट फैक्टर व्हिच विल प्रोवाइड थर्ड जीरो। आपको तीसरा जीरो निकाल करके देगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो x² इस √2 का √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? √4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू 2 होती है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस लगा हुआ पहले से, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी -2 और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? fx। अब हमें fx निकालना है यार, हमें तीसरा जीरो वाला फैक्टर निकालना है, थर्ड फैक्टर फाइंड करना है। थर्ड फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? px इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू px डिवाइडेड बाय x² -2। तो स्टूडेंट्स px क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल है। तो आइए डिवाइड करते हैं। फिर से हमें क्वेश्चन ने उसी मोड़ पर लाके छोड़ दिया है जहां हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो आइए डिवाइड करते हैं। fx कैसे मिलेगा, यानी तीसरा फैक्टर कैसे मिलेगा? तीसरा फैक्टर मिलेगा जब हम px को x² -2 से डिवाइड कर देंगे। और स्टूडेंट्स फैक्टर मिलेगा, फैक्टर मिलेगा मींस फैक्टर मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं। x² -2 x³ प्लस 3x² -2x -6। यहां पर लिखता हूं मैं कोशिएंट। आदत है स्टूडेंट्स जो बन जाता है। अब बताइए, आप इसको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, x आएगा कि नहीं आएगा? x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x³ माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर लिखिए -2x आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। और स्टूडेंट्स एक चीजें आप लोग देख लिया करिए, मैं आपको बार पहले ही बता चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डिवीजन गलत नहीं होता है कभी भी। माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, मींस 3x², ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, -6। फिर से आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, 3x² में अगर आप x² से भाग देते तो पूरी पावर कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा। तो प्लस का 3 बचेगा। 3 का स्टूडेंट्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² -6। सिर्फ क्या आ गया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब आप लोग 100% सही है, यू आर 100% करेक्ट।
तो स्टूडेंट्स इसको इससे डिवाइड करने पर क्या मिला, px जब इससे डिवाइड किया गया तो क्या मिला, x + 3 मिला। यानी स्टूडेंट्स हमारा थर्ड फैक्टर क्या हो गया, आवर थर्ड फैक्टर इज x + 3। तो व्हाट विल बी आवर थर्ड जीरो, तो थर्ड जीरो विल बी गिवन बाय fx equals to 0, fx equals to 0 यानी स्टूडेंट x + 3 equals to 0 यानी x equals to -3। तो स्टूडेंट्स आपका थर्ड जीरो क्या मिल गया, x - 3। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स आपको सिर्फ थर्ड जीरो नहीं लिखना, आपको सारे जीरोस लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, all zeros are √2 - √2। मतलब आप समझ पा रहे हैं, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ px। कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, इट हैज 3 जीरोस। इफ इट्स वन जीरो इज -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक अकेला जीरो दिया है, यानी बाकी के दो आपको निकालने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे सोचिए, क्वेश्चन को अच्छे से सोचिए। इन दिस क्वेश्चन ओनली वन जीरो इज गिवन एंड थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम बाकी तीनों जीरो भी निकाल लें। तीनों जीरोस रियल होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है निकालने को। तो आइए स्टूडेंट्स, आप काफी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन पॉलिनोमियल इज px equals to 2x³ plus 3x² minus 11x minus 6. This is students our given polynomial and its zeros. Let its zeros are alpha, beta and gamma. Let its zeros alpha equals to students, let it is given -3 and beta equals to unknown, gamma equals to unknown. स्टूडेंट्स ये दोनों जीरोस पता नहीं, इसे आप कोई चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं बीटा की वैल्यू -3 है, अल्फा गामा अननोन है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है ओवरऑल वी हैव टू फाइंड 2 अदर जीरोस, वन जीरो इज गिवन। ठीक है, आप जो मर्जी उसको ले लें। सपोज आप कह सकते हैं कि अल्फा बीटा निकालना है, गामा गिवन, आपकी मर्जी, इस पर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट अस प्रोसीड स्टूडेंट्स। इफ इट हैज 3 zeros then px can be written as, if polynomial px has 3 zeros, it means x minus alpha, x minus beta and x minus gamma. X minus alpha, x minus beta and x minus gamma. These are 3 factors. Px has 3 zeros, then it has 3 factors. So students, only one zero is given. Suppose this alpha is given. Use the value of alpha. Px equals to x plus 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 गिवन है। और स्टूडेंट्स बाकी बचे हुए पॉलिनोमियल को स्टूडेंट ध्यान दो, इस बार मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, इस बार मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया दो फैक्टर्स को। क्यों, वाई? आप इस क्वेश्चन पर फोकस करें। इस बार मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमें 2 जीरोस पता हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उससे हमें सिंपलीफाई हो जाता है। अगर हमें स्टूडेंट्स एक ही जीरो पता है तो मल्टीप्लाई करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस बार इस पूरे इन 2 जीरोस को मिलाकर के क्या सपोज कर लेंगे, fx सपोज कर लेंगे। ठीक है, तब fx क्या होगा स्टूडेंट्स? fx will have 2 zeros, fx has 2 zeros, बीटा एंड गामा। fx की जो वैल्यू होगी वहीं से 2 जीरो निकलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, अच्छे से करना ही होगा आपको समझना होगा। क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, आप समझ पा रहे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, fx की वैल्यू निकालिए। fx क्या होगा? px डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस मोड पर हम फिर से आ गए हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आइए डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जान है, इन सब की क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जान है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हैं तो आपको फिर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। तो डिवीजन इज x प्लस 3 एंड 2x क्यूब
plus 3x square minus 11x and minus 6. Students, this is already in standard form, तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आइए करते हैं, देखते हैं. स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग. डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं fx क्या आ गया, fx ये आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स. सो 10 fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. इसके स्टूडेंट्स फैक्टर कर देते हैं आप सिंपल सा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से. तो इसको स्प्लिट कर देंगे कि मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2x स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट माइनस 4x और प्लस x, इस तरह से ये टूट जाएगा. 2x कॉमन ले लेंगे, देन 2 only x minus 2 in this plus 1 कॉमन ले लेंगे, x minus 2. so स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2x plus 1 and x minus 2. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स. जो डिवाइड करने के बाद आता है वो क्वाड्रेटिक होता है. डिवाइड करने के बाद जो आता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है. और क्यों होता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक होता है. ये क्यों होता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके 2 जीरोस निकलने हैं अभी यहाँ से. तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे. तो अदर 2 जीरोस क्या होंगे स्टूडेंट्स, अदर 2 जीरोस विल बी, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. तो other two zeros are given by fx equals to 0. बाकी उसी से हमारे बीटा और गामा निकालने थे. तो 2x plus 1 equals into x minus 2 equals to 0. तो students, from here we will get 2x plus 1 equals to 0 and x minus 2 equals to 0, which provides x equals to minus 1 by 2 and this provides x equals to 2. So all zeros are minus 3, 2 and minus 1 by 2. ठीक है स्टूडेंट्स.